Okay, good morning, all. Let's start with the lecture. Today, we'll continue with the topic that we people were talking and discussing. Last time we discussed about access modifiers. Access modifiers are a kind of options available in classes and object concept where what happen is like if we want some members to be accessed outside the class, then we have to write certain words, certain keywords before the names wherever we specify such names. ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जो क्लास के अंदर मैंने डेटा मेंबर्स डिफाइन किए जैसे टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, likewise. So I want to use these variables within the class only. क्लास से बाहर इनकी यूज ना हो, right? So for that we need to write this keyword private before this. Now if we write this private, this indicates that this variable title can be used within this class book only, not outside the class. ठीक है, तो हम ये एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी जो भी वेरिएबल्स डेटा मेंबर्स हम यहाँ बना रहे हैं, if you want to make them private, means if you want to use them within class only, then it is we have to write these keywords private before the names of these variables, right? अगर आप private नहीं लिखते हो, then all are public. That means they can be accessed outside the class. अभी access outside the class का मतलब क्या है कि मान लो हमने एक क्लास बनाई बुक, फिर हमने एक क्लास बनाई लेट्स से क्लास या स्कूल. अब स्कूल क्लास जो है वो बुक क्लास की सब क्लास है. सब क्लास होती है कि क्लास का पार्ट. सो इन दिस केस इफ आई वांट that whatever variables we define in this book class, the same variable should also be used in the second class, that is your school class. दोनों जगह पे यूज करवाना चाहते हैं, तब हम ये प्राइवेट हटा देंगे, राइट? जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन होता है. उससे क्या होगा, जो डेटा मेंबर्स आप बनाओगे वो सारे के सारे पब्लिक कैटेगरी में होंगे एंड दे कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर. बट अगर आप प्राइवेट लिखते हो तो ये जो टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जेनर, प्राइस, 5 जो वेरिएबल्स बने हैं, डिक्लेयर हुए, जो डेटा मेंबर्स हमने बनाए हैं, दीज कैन बी यूज्ड ओनली विद इन दिस बुक क्लास, नॉट आउटसाइड द क्लास. तो इसका मतलब जो दूसरी क्लास है, जैसे स्कूल क्लास मान लो हमने बनाई, उसमें ये वेरिएबल्स एक्सेस ही नहीं हो पाएंगे. तो ऐसे हम एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं with the help of this private keyword, right? So by default it is public, and then if you want to change this into private, then you have to write this keyword private before this, right? अब इसके बाद जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, there's another class called as book test. एक क्लास बनाई है बुक, उसके अंदर ये सारे डेटा मेंबर्स को हमने प्राइवेट कर दिया. फिर एक और क्लास बनाई है बुक टेस्ट, right? Now if I try to write book 1 dot then name of any of the method which we declare here, तो वो यहाँ पे आपको मेथड्स डिस्प्ले ही नहीं करेगा, बिकॉज वो सारे प्राइवेट थे, राइट? सो दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्राइवेट कीवर्ड. तो इसके आपका जो भी वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स आप बना रहे हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट? Then we have another group of methods called as getter method and setter methods. Now we know that these private members, they cannot be accessed outside the class, right? अभी हमने बात करी है कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो हैं वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, but you can give controlled access to the data members outside the class using these two methods. कि हम दो ऐसे मेथड यूज करके एक्सेस एक कंट्रोल्ड वे में क्लास के बाहर भी दे सकते हैं.
ठीक है, देयर इज एन ऑप्शन फॉर दैट work. We need these two kind of methods, getters and setters, right? A getter method returns the value of a data member. So getter member जो है, getter method जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल की जो भी डेटा मेंबर हमने डिफाइन किया. फॉर एग्जांपल वी वुड डिफाइन ए getter method in book class for the price data member as given below. Like जैसे हमने book class के ऊपर डिफाइन की थी ये वाली, तो इसमें एक प्राइस डेटा मेंबर था, एक वेरिएबल हमने प्राइस बनाया था. तो उसको डिफाइन करने के लिए वी कैन सेट अ गेट अ मेथड लाइक दिस. हाउ डू वी राइट दिस? यू जस्ट गिव द डेटा टाइप. डेटा टाइप वही होगा जो वेरिएबल का था, प्राइस का डबल था तो विल राइट डबल हेयर. देन वी हैव टू डिफाइन वन मेथड विद द कीवर्ड गेट. सो गेट प्राइस नाम का एक मेथड बन गया और इसमें हमने लिखा है रिटर्न प्राइस. सो दिस विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द प्राइस वेरिएबल. सो वट एवर इज द वैल्यू असाइन टू द प्राइस वेरिएबल, जब ऑब्जेक्ट बनता है, जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वैल्यू ये मेथड रिटर्न करेगा जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा, राइट? देन वी हैव we can define a setter method also. Setter method is just to control how the value of the price is set, right? For example, now we do not allow the book price to become lower than 1000. If you want to give such kind of condition there कि भाई ये जो price variable है इसकी value 100 से कम ना हो, so for that we can use this setter method. So we'll simply write set price, right? Set keyword लगाना है, getter method में get keyword और setter method में set keyword, right? We need a variable to store the price, तो उसके लिए एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो न्यू प्राइस ले लिया, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, राइट? सो दिस विल कैरी द वैल्यू ऑफ द प्राइस. जो भी प्राइस वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैरी करेगा. और अगर हमने कंडीशन दी है, अगर वो इफ दैट न्यू प्राइस वैल्यू इज लेस देन 100, देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट, प्राइस कैन नॉट बी सेट लोअर देन 100, राइट? एल्स प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस. तो प्राइस की वैल्यू में न्यू प्राइस डाल दो. तो जो भी वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी वो चेक होगी. वो वैल्यू अगर 100 से नीचे है तो ये प्रिंट मैसेज आएगा, और अगर 100 से ऊपर है या 100 के इक्वल है तो वो वैल्यू प्राइस को असाइन कर दी जाएगी, राइट? So such kind of condition if you want to give, that we have to do with set price setter methods. And just to return a value, return of the value of the price variable, we need a getter method like this, right? So in this class, book getter and setter methods can be used to retrieve and set a new price of the book. Retrieve कैसे किया? getter method से. और सेट कैसे किया? सेट मतलब उसको नई वैल्यू देनी, वो हमने सेटर मेथड से दिया विद सम कंडीशंस, राइट? Now one more condition is added here. Let's say the book test class wants to display the price of the book 1 object by discount the price by 20%. तो एक ऑब्जेक्ट बनाना हमने book 1 नाम का, और उसका जो प्राइस होगा उसमें 20% डिस्काउंट देना है, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी फर्स्ट गेट द बुक प्राइस. हाउ डू वी गेट द बुक प्राइस? यूजिंग ए गेटर मेथड. गेट प्राइस मेथड से हम बुक प्राइस रीड कर लेंगे. use the price to determine the discount, then we'll use that value to find out the discount. We'll find out 20% of the whatever variable value is there, तो 20% निकाल के माइनस कर देंगे. And then we'll use the set price method to change the value, right? So get price, the getter method is used to read the value, and setter method is used to update or change that value, right? इसकी कोडिंग ऐसे होगी, ये देखो. We have taken a variable book price. Book price is equal to book1 dot get price. book1 dot get price किया तो book1 ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू असाइन की गई थी प्राइस वेरिएबल को, that will be picked.
और वो बुक प्राइस नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और फिर हमने उसका 20% कैलकुलेट किया, राइट। बुक प्राइस इज इक्वल टू बुक प्राइस माइनस 20 इंटू वट एवर इज द बुक प्राइस ओवर 100, तो ये हो गया 20%। वो हमने बुक प्राइस में से माइनस कर दिया, डिस्काउंट है माइनस करेंगे, विल अपडेट द बुक प्राइस। जो बुक प्राइस जो भी होगी उसका 20% लेस होके आपके पास बुक प्राइस में दोबारा सेव हो जाएगा। एंड नाउ वी नीड टू अपडेट इट। अपडेट कैसे करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और सेट प्राइस मेथड को कॉल कर दिया और जो भी बुक प्राइस की वैल्यू थी उसको पास कर दिया, राइट। सो सेट प्राइस मेथड के थ्रू ये बुक प्राइस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ से, राइट। So whatever is the new value that will be assigned to this new price variable। फिर वो चेक करेगा कि अगर वो 100 से नीचे है तो ये प्रिंट होगा कि प्राइस लोअर नहीं हो सकता, अगर वो 100 से ऊपर है तो प्राइस को वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ द होल प्रोग्राम वर्क्स, राइट। दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम दैट हाउ विल यू राइट दिस, राइट। तो यहाँ पे एक बार थॉरली पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बुक टेस्ट नाम की क्लास क्रिएट की और मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, बुक वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने ये किया था। और ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर मेथड और क्लास का नाम सेम होता है, बुक नाम का। ब्रैकेट ओपन किया एंड जो भी बुक के 5 वेरिएबल्स हमने ऊपर बुक क्लास में डिफाइन किए थे, these 5 वेरिएबल्स, ये 5 वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जर्नल, प्राइस, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ बुक टेस्ट क्लास शो हो रही है, बुक क्लास इसके पहले बनानी पड़ेगी आपको इसके ऊपर, राइट। वो जो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था, राइट। सो these 5 वैल्यूज आर असाइन टू ऑल these 5 वेरिएबल्स। सो एक नया ऑब्जेक्ट बन गया बुक वन नाम से। फिर हमने क्या किया, बुक वन डॉट डिस्प्ले कॉल किया। डिस्प्ले मेथड हमने बनाया था पिछले प्रोग्राम में। डिस्प्ले में होता है कि जो कुछ भी है ऑल द थिंग्स आर प्रिंटेड, राइट। सो पहले ये डिस्प्ले मेथड में कि टाइटल प्रिंट हो गया, ऑथर प्रिंट हो गया, पब्लिशर प्रिंट हो गया, जर्नल और प्राइस प्रिंट हो गया, राइट। उसके बाद है डबल बुक प्राइस इज इक्वल टू बुक वन डॉट गेट प्राइस। नाउ वी आर गेटिंग दी वैल्यू ऑफ द प्राइस वेरिएबल फ्रॉम बुक वन ऑब्जेक्ट। बुक वन ऑब्जेक्ट में प्राइस की वैल्यू थी 450 रुपीज़। सो 450 रुपीज़ आपके बुक प्राइस नाम के वेरिएबल में आ गए। फिर हमने उसका 20% कैलकुलेट किया, 400 का 20% कैलकुलेट करके 400 से ही माइनस कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट है माइनस करेंगे। सो 20% कैलकुलेट होगा और 400 से माइनस हो जाएगा, और वट एवर इज द आंसर इट इज़ अगेन सेव टू द बुक प्राइस। तो बुक प्राइस वेरिएबल में ही दोबारा वो सेव हो गया, राइट। उसके बाद फिर हमने सेटर मेथड को कॉल किया। अब सेटर मेथड में क्या कर रहे हैं, हम सेट प्राइस मेथड को कॉल कर रहे हैं और जो भी बुक प्राइस की वैल्यू आई 20% डिस्काउंट देने के बाद, दैट इज पास्ड टू द सेटर मेथड। और सेटर मेथड में ये इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर वो वैल्यू 100 से नीचे है तो प्रिंट करेंगे प्राइस कैन नॉट बी लोअर देन 100, और अगर वो ज़्यादा है तो प्राइस को वो वाली वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी, राइट। सो this is how the value of price variable can be changed, right। और लास्ट में हमने एक लाइन ये प्रिंट की है, बुक प्राइस डिस्काउंटेड बाय 20%, फिर न्यू प्राइस इज बुक वन डॉट गेट प्राइस। तो गेट प्राइस मेथड से फिर से रीड कर लिया और विल गेट दैट आंसर। जो भी अपडेटेड वैल्यू है दैट विल बी प्रिंटेड, ये 360 रुपीज़ प्रिंट हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सी ये गेट प्राइस मेथड वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ये सेट प्राइस मेथड वैल्यू कहाँ चेंज कर रहा है, ये कर रहा है बुक नाम की क्लास में, नॉट इन दिस बुक टेस्ट। वी आर राइटिंग दी स्टेटमेंट इन द क्लास नेम्ड बुक टेस्ट, राइट। बट एक्चुअली दिस गेट प्राइस मेथड is a getter method which reads the value from the book class, not from the book test, right।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कौन सी क्लास का बन रहा है, बुक क्लास का, बुक टेस्ट का नहीं बन रहा। तो हम किसी दूसरी क्लास में किसी और क्लास के डेटा मेंबर्स बना रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट। So we are working in book test, but we are using the values of book class. तो ये these values are being used outside the class, ठीक है। इनिशियलाइज भी हमने आउटसाइड किया और डिस्प्ले भी हमने आउटसाइड किया, और गेटर मेथड से हमने प्राइस की वैल्यू को रीड भी कर लिया। जबकि जब हमने बुक क्लास बनाया था तो हमने क्या किया था, वी हैव मेड ऑल द वेरिएबल्स प्राइवेट, और प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। बट यहाँ पे हो रहे हैं, रीजन इज दैट दीज गेटर एंड सेटर मेथड्स कैन रीड द प्राइवेट वैल्यूज ऑल्सो। तो अगर आपने प्राइवेट भी डिफाइन किया है, then also you can use those variables or data members outside the class using these getter methods as well as setter methods, ठीक है। तो ये प्राइवेट लगाने के बावजूद हम लोग उनको एक्सेस कर रहे हैं, प्राइस वाले वेरिएबल्स को, फाइन। So this is the main thing over here, right? Then next we have then we have Java libraries. Now Java has hundreds of inbuilt classes, pre-built, मतलब बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जावा में जो पहले से बनी हुई हैं, हमें उसमें नई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू यूज़ देम, ठीक है। बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस, जैसे हम लोगों ने जब ये नेटबीन्स शुरू किया था तो हमने फॉर्म्स बनाए थे। अब उन फॉर्म्स में क्या था कि हम कंट्रोल्स लगाते थे, हम ड्रैग करके जैसे बटन लगा दिया या कोई टेक्स्ट फील्ड लगा दी, ठीक है, कोई भी कंट्रोल उठा के आप ड्रैग करके लगा सकते हो। अब एक्चुअली स्पीकिंग जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोई भी कंट्रोल अगर ऐड हो रहा है तो उसके पीछे सम कोडिंग हैज़ टू बी रिटन, सम प्रोग्रामिंग हैज़ टू बी डन। But in Java or especially in NetBeans, we have the special feature that we don't have to write those instructions. हमें वो commands, वो instructions, वो code या वो program से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ control लगाते हैं, वो automatically class create हो जाती है। So actually what we are doing here is, in NetBeans, when you drag any control from the palette to the screen, आप पैलेट में से मान लो आपने बटन उठाया, बटन उठा के आपने फॉर्म के ऊपर लगा दिया, तो होता क्या है एक्चुअली कि वो बटन बिलोंग्स टू वन बटन क्लास। बटन जो है वो एक बटन क्लास को बिलोंग करता है। जैसे ही आप एक कंट्रोल बटन को उठा के स्क्रीन पर रखते हो, अ न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दैट क्लास, एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो जो भी नाम होगा उस बटन का, जैसे जे बटन 1 लेट से, तो जे बटन 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअली हमारे लिए तो इट्स वेरी इजी टू ड्रैग एंड ड्रॉप, बट एक्चुअली स्पीकिंग सम कोडिंग हैज़ बीन डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर एट द बैकग्राउंड, राइट। सो इन जनरल आई वांट टू से दैट कि बहुत सारी ऐसी क्लासेस रेडीमेड हैं आपके जावा सॉफ्टवेयर के अंदर, हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस आर देयर, यू जस्ट हैव टू यूज देम। यूज कैसे करते हैं, यूज करने के लिए वी नीड इंपोर्ट स्टेटमेंट, you have to use import statement to add those inbuilt classes into your program, that whatever you are doing, ठीक है। हमने जब एक इमेज आइकन प्रॉपर्टी की थी, इमेज आइकन प्रॉपर्टी में क्या था कि आप किसी कंट्रोल के अंदर सॉरी किसी कंट्रोल के अंदर आप एक इमेज लगा सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जब आप रन टाइम पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हो यूजिंग इमेज आइकन मेथड, सो इट विल नॉट रन। रीज़न क्या था कि इमेज आइकन की जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं होती। उसके लिए हमें कोडिंग एरिया में टॉप पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, तभी वो इमेज जो है वो इंपोर्ट हो पाएगी।
ऐसे ही जो डायलॉग बॉक्सेस थे हमारे, जे ऑप्शन पेन वाला जो ऑप्शन था, उसमें भी इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सो दैट मीन्स मतलब अगर आपको कोई भी इनबिल्ट क्लास को, इनबिल्ट फीचर को जावा के यूज़ करना है, then you have to write import statement for that particular feature so that we can use them directly। ठीक है, सिंपलर एग्जांपल मैं बताता हूँ। जो हमने setX मेथड किया था, getX मेथड किया था, ये जो दो मेथड्स हैं ये किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट। सो ये एक इनबिल्ट क्लास है, तो ये आप कैसे यूज कर पाते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड है। whenever you start a frame, when you create a frame, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं, राइट। बस बाकी जो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं होते हैं उसके लिए आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट से इंपोर्ट कराना पड़ता है। सो दीज लाइब्रेरीज, हम इन सारी फाइल्स को लाइब्रेरीज बोलते हैं जो इनबिल्ट है, पहले से बनी हुई हैं, जस्ट आपको उनको यूज करना है। यूज करने के लिए वी नीड टू राइट दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट wherever coding is being done in the coding window, fine। Then we have data input। Data input is how do we input the data, how do we get the input, input करने का तरीका क्या है। अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं ये सिंपल प्रोग्राम्स थे। सिंपल इन द सेंस कि इसमें हम लोग यूजर से इनपुट नहीं करा रहे, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि we are using our own values, and then we, if we want to print those values, we are printing it। if we want to run a value or change a value or manipulate it, if we want to change it or modify it, we are doing it directly। जैसे ये पीछे हमने अभी एग्जांपल किया, यहाँ पे देखो हमने अपनी तरफ से वैल्यूज डाली हैं, ठीक है। व्हेन यू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, हमने इसको ये वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, तो दिस इज ऑल डन बाय अस। नाउ इफ आई वांट वन काइंड ऑफ इंटरेक्टिव प्रोग्राम, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं कि जिसमें यूज़र जो है, मैं वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है किसी एक कंप्यूटर में डाल देता हूं, उस कंप्यूटर में जो भी बैठेगा, जो भी यूज़र बैठेगा, वो उसमें जो कुछ भी इनपुट करता है, आई वांट टू यूज़ दैट इनपुट। I don't want to use my values, I want the user's inputted values, right? So I want the user input values। So उसके लिए भी there's an option, right? So we haven't done these interactive programs। The program is interactive if it is able to ask input from the user and respond accordingly, right? जो हमने frames किए थे पहले, forms किए थे, उन forms में ये option था। उस फॉर्म्स में जब हम रन करते थे तो स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्म खुलता था, वहाँ पे जो भी एंट्री की जाती थी वो एंट्री कोई भी कर सकता है, ठीक है। वो तो चलो हम बना रहे हैं, वी वांट टू टेस्ट एंड देन वी डू इट फॉर आवरसेल्फ। बट इफ़ यू गिव दैट सॉफ्टवेयर टू समबडी, इफ़ यू गिव दैट प्रोग्राम टू समबडी, वो बोलो भाई आप अपनी मर्जी से इसमें एंट्री कर सकते हो। जैसे आपने कैलकुलेटर बना दिया, राइट। अब कैलकुलेटर में यूज़र अपनी मर्जी का नंबर इनपुट करेगा और उसको आंसर दिखेगा, तो ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, राइट। तो अगर आपको क्लासेस के थ्रू भी ऐसे इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स बनाने हैं, देन देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू अस। So to take user input, we use pre-built scanner classes। Pre-built scanner classes are, these are the classes which are inbuilt, पहले से बनी है, तो हमें उनको सिर्फ यूज़ करना है। और अभी हमने किया था, यूज़ करने के लिए हमें import statement डालनी पड़ती है, राइट। दिस इज हाउ इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज रिटन अबाउट दिस स्कैनर। जैसे हमें स्कैनर क्लासेस को यूज़ करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। ये जावा डॉट यूटिल क्या है, ये पैकेज का नाम है जिसके अंदर ये क्लासेस अवेलेबल होती हैं, तो पैकेज का नाम भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, राइट। सो फर्स्ट वी नीड टू इम्पोर्ट दिस क्लास। नाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास। हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए हमने जैसे क्लासेस नॉर्मल करते हैं वही मेथड है। स्कैनर लिखे,
यूज़र इनपुट हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, कोई भी नाम दे सकते हो आप, न्यू कीवर्ड लगाया और ये कंस्ट्रक्टर मेथड लिया, और कंस्ट्रक्टर मेथड में हम लिखना है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो है ये एक तरीका है जिसके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इनपुट कंसोल बनता है, मतलब इनपुट किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग द इनपुट. So this line we have to add up to create a new object for this class scanner. Then we invoke the next method of the scanner class that returns the token read from the input stream as string object. So हम एक next method use करते हैं जो input stream के लिए, input stream मतलब कि input कराने के लिए एक string object जो है create करता है, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट का जो भी नाम लिया, जैसे यूज़र अंडरस्कोर इनपुट हमने क्रिएट किया था, डॉट नेक्स्ट लिख देना है और उसको किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को साइन कर देना है. यू नीड अ वेरिएबल है, राइट. जस्ट राइट एनी नेम, यू कैन राइट एनी नेम वेरिएबल, बट इट शुड बी स्ट्रिंग टाइप, बिकॉज ये नेक्स्ट मेथड हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, राइट. फिर हमने इस नेम को हमने प्रिंट कर दिया. वी हैव रिटन वन प्रिंट स्टेटमेंट, हेलो प्लस नेम. सो हेलो और जो भी नाम यूज़र एंटर करेगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट. अब ये तो चलो स्ट्रिंग हो गया. अगर मुझे नंबर्स चाहिए, आई वांट इंटीजर वैल्यूज. इंटीजर वैल्यूज के लिए हमें इंटीजर क्लास को इन्वोक करना पड़ेगा. वी हैव टू यूज दिस इंटीजर क्लास. और इंटीजर क्लास में एक मेथड है पारसेंट, जो हमने पहले भी किया था जब हम फॉर्म्स कर रहे थे, फ्रेम्स कर रहे थे. तो ये पारसेंट मेथड से हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. तो ये वही सेम लाइन है. स्ट्रिंग एज अंडरस्कोर स्ट्रिंग, एज अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम है, कोई भी आप इजी नाम भी रख सकते हो. ये ऑब्जेक्ट का नाम था यूजर अंडरस्कोर इनपुट जो हमने यहाँ बनाया था ऊपर. डॉट नेक्स्ट विल रीड दैट वैल्यू. नाउ दिस वेरिएबल इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप बिकॉज बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज इज पिक्ड अप इन स्ट्रिंग फॉर्म. हमें इसको इंटीजर में बदलना है, हमें ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी. ये जैसे हम उसमें फ्रेम्स वगैरह में करते थे, इंटीजर डॉट पारसेंट और ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम जो भी है, एज अंडरस्कोर स्ट्रिंग, राइट. सो दिस विल चेंज whatever value we have here into integer form. तो उसको हमने एक अलग से वेरिएबल लिया है एज. we have saved that into age variable which is integer type, right. Now we use this age for printing. in 5 years you'll be age plus 5. एज की वैल्यू में 5 प्लस करके प्रिंट हो जाए, right. This is the complete program written over here. इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट लिया. इफ़ यू वांट टू यूज़ कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू इंटीजर फॉर्म, अगर आपको फ्लोट में करना है तो आपको फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट लेना पड़ेगा. अगर आपको डबल करना है तो डबल डॉट पार्स डबल लेना पड़ेगा. लाइकवाइज यू हैव टू टेक दीज डेटा टाइप्स, राइट. पार्स मेथड अलग अलग हैं हर अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए. लेट्स सी दिस. इसमें मेन मेथड क्लास इज डेटा इनपुट डेमो, एक नाम की क्लास बनी है. और ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट ऊपर टॉप्स में डाली, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. क्योंकि अगर ये आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये मेथड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, नेक्स्ट मेथड यूज़ नहीं हो पाएगा, राइट. और न्यू स्कैनर क्लास नहीं बन पाएगी. नाउ इन मेथड ये ऑब्जेक्ट बना, स्कैनर यूजर अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. सो इससे आपका नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा यूजर इनपुट नाम से. फिर हमने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, एंटर योर नेम. सो ये क्या होगा, आउटपुट एरिया में एक लाइन प्रिंट होगी, एंटर योर नेम. फिर यूजर वहाँ पे कोई भी नाम एंटर करेगा, वो जो भी नाम एंटर करेगा वी नीड टू पिक दैट नेम. हाउ डू वी पिक इट, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट, राइट. ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट मेथड विल पिक दैट वैल्यू. अब जो भी वैल्यू पिक होगी इट विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्म. सो वी नीड ए वेरिएबल नेम टू सेव इट. नेम या नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको मैं वो
जो भी एंट्री होगी वो सेव हो जाएगी। और एक और प्रिंट स्टेटमेंट है एंटर योर एज, तो ये भी जो भी वैल्यू होगी वो एज अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एज जो है वो नंबर्स में होगी, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू नंबर्स। तो यहाँ इंटीजर डॉट पारसेंट से उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। और एज नाम के वेरिएबल में वो सेव हो गया। देन वी हैव रिटन दीज प्रिंट स्टेटमेंट्स टू प्रिंट एवरीथिंग, राइट। सो हेलो नेम, नेम मतलब जो नेम यूजर ने इनपुट किया था वो प्रिंट होगा। इन 5 ईयर्स यू विल बी, जितनी भी एज उसने यूजर ने लिखी है 10 ईयर्स 20 ईयर्स वट एवर नंबर इट इज़ रिटन, उसमें 5 प्लस करके प्रिंट कर देंगे। और एन ईयर्स ओल्ड, दिस लाइन विल बी प्रिंटेड एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा में है, फाइन। So that's it how inputs can be managed, right? A user defined input can be managed. So next time we'll try to practice this program, fine. So I think I'll end up now. कैमरे फिर बंद हो गए सबके, चलो। So that's all from my side. I'll